Hello students. In this part, I will discuss about trachea and lungs. Okay. In the previous class, I have discussed about larynx, and in this class, I will continue the breathing and gaseous exchange chapter, and we will start trachea. What is trachea? Trachea is a tubular structure, and this structure is supported by C-shaped cartilaginous rings. This structure is supported by C-shaped cartilaginous ring. This cartilaginous ring protects the trachea from collapsing. Trachea is part of respiratory tract through which air passes or enters in our system. Okay, our respiratory organ is lungs. एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा मीन्स हमारी ये बॉडी में पीछे से वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल ये वर्टिब्रा प्रेजेंट है. थोरेसिक वर्टिब्रा 12 हमारे पास है. इसमें से फिफ्थ लेवल पर सामने से जब ट्रैकिया आता है तो एट दिस लेवल फिफ्थ थोरेसिक लेवल द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकस एंड इट एंटर्स इन आवर लंग्स. वी हैव वन पेयर लंग्स. तो ये ट्रैकिया हमारे लंग्स में एंटर करता है. ट्रैकिया विंड पाइप भी है. इस विंड पाइप से होकर के एयर हमारा एंटर करता है और जहाँ पर ये डिवीजन करता है, दिस पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड कैरिना. दिस इज कॉल्ड कैरिना. सो व्हाट इज ट्रैकिया? ट्रैकिया इज tubular structure which is lined by pseudo-stratified, which is lined by pseudo-stratified columnar epithelium. It is lined by pseudo-stratified columnar epithelium. The cells of pseudo-stratified columnar epithelium appears like means cells are arranged in single layer, but it appears that the cells are arranged in two layers, one small layer and one large layer. But actual condition is that the cells are arranged in single layer, but the size of cell is different due to which two strata appears, one smaller strata and one larger strata. These are ciliated, means bears cilia on its terminal part. These cilia, so it is pseudo-stratified, means false strata दिख रहा है इसलिए इसको pseudo-stratified कहते हैं. What is the function of cilia? Cilia beats outwardly. Cilia beats outwardly to push the dust particle and microbe in outward direction. मतलब कि हमारे पास जब एयर को इनहेल करते हैं तो इस इनहेल्ड एयर के साथ डस्ट पार्टिकल, माइक्रोब्स ये भी हमारे सिस्टम में एंटर कर सकता है. तो यहाँ पर ये सीलिया बीट करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में और सीलियरी बीटिंग के थ्रू हम डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब्स को बाहर, बॉडी से बाहर एक्सपेल करके निकाल सकते हैं. सो इसका फंक्शन समझ में आ गया कि यहाँ पर क्यों pseudo-stratified ciliated epithelium this is presented. Now I will start our respiratory organ, and our respiratory organ is lungs. So this is the structure of our lungs. In human being, one pair lungs are present. Both the lung contains an opening, and this opening is called hilum. This opening is called hilum or hilus. Through this hilum or hilus, primary bronchus enters in our lungs. Okay, this lung is protected by our chest, our rib cage, as it is located in chest cavity. तो chest cavity में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर स्टर्नम होता है,
पीछे से वर्टिब्रल कॉलम होता है और ऐसे ऐसे 12 पेयर्स रिब्स होते हैं जो यहाँ से निकल करके पीछे वर्टिब्रल कॉलम तक जाते हैं। तो ये इस तरह से एक केस कवरिंग का फॉर्मेशन करता है जिसको रिब केस कहते हैं। थोरेसिक बास्केट भी कहते हैं। तो लंग्स आर प्रोटेक्टेड इन आवर रिब केस और थोरेसिक बास्केट। नॉट ओनली लंग्स बट इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड सम फ्लोटिंग रिब्स प्रोटेक्ट्स आवर किडनी ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास रिब केज में बंद है। तो लंग्स को प्रोटेक्शन किसने दिया? रिब केज ने प्रोटेक्शन दिया। लंग्स को रिब केज के अलावा प्रोटेक्शन देना है तो किसने प्रोटेक्शन देना है? तो दिस लंग इज एनक्लोज्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लूरॉन। दिस सैक इज कॉल्ड प्लूरॉन एंड इन द प्लूरॉन two membranes are present, outer parietal pleuron and inner visceral pleuron. So this pleuron is differentiated into outer parietal and inner visceral. Okay, in between this outer parietal and inner visceral pleuron a fluid is present and this fluid is called pleural fluid. This fluid is called pleural fluid. What is the function of this pleuron and pleural fluid? Obvious है कि लंग्स के अंदर जब हम एयर को इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो लंग्स विल एक्सपेंड एंड लंग्स विल कॉन्ट्रैक्ट। तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन ये बाहर निकलेगा, कॉन्ट्रैक्शन अंदर जाएगा। तो बाहर में रिब केज है तो रिब केज से ये बार बार स्ट्राइक करेगा तो मे बी लंग का आउटर सरफेस हमारा डैमेज होगा। तो लंग्स को हमने एक कैवरिंग के अंदर बंद कर दिया, यानी एक्सपेंड करके भी रिब केज को स्ट्राइक नहीं करेगा बल्कि फ्रिक्शनलेस मूवमेंट वहाँ पर जब फ्लूरल फ्लूइड होगा वो उसको फ्रिक्शनलेस मूवमेंट देगा जिसके कारण लंग्स हमारा कभी भी डैमेज नहीं होगा। तो ये हमारा प्रोटेक्शन है कि हमारे पास प्लूरल फ्लूइड है, प्लूरॉन है एंड बोथ द प्लूरल फ्लूइड एंड प्लूरॉन provides frictionless movement, provides frictionless movement to our lungs, provides frictionless movement to our lungs। हो गया। अब लंग्स का स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग one pair lungs are present. It is our main respiratory organ. Okay, right lung is comparatively larger, slightly larger than the left lung. In the left lung only 2 lobes are present, whereas in the right lung 3 lobes are present. The lobes, कितने lungs हो गए हमारे पास? right एंड लेफ्ट। इसमें 3 लोब्स हो गए और इसमें कितने? 2 लोब्स हो गए। जो 3 लोब्स है राइट लंग में उनका नाम है सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड इंफेरियर लोब। और लेफ्ट में जो 2 लोब प्रेजेंट है उसका नाम है सुपीरियर लोब एंड इंफेरियर लोब। ओके, तो हमारे पास 1 पेयर लंग हो गया, राइट लंग और लेफ्ट लंग। right lung slightly larger than left. Why it is slightly larger than the left? Because in the left side of our chest cavity well developed heart is present. Due to position of heart our left lung is slightly smaller to accommodate easily in the chest cavity. To accommodate heart easily in the chest cavity our left lung is slightly smaller than the right lung. Okay, in the left lung due to position or due to accommodation of heart near the lung depression is observed. That depression which is observed in the left lung is called cardiac notch. This is called cardiac notch। तो यहाँ पर लंग्स के बगल में हार्ट का पोजीशन है। तो हार्ट को अच्छे से एकोमोडेट करने के लिए हमारे पास क्या हो रहा है? अच्छे से एकोमोडेट करने के लिए लेफ्ट लंग स्लाइटली स्मॉलर हो रहा है राइट की तुलना में और हार्ट के पोजीशन के कारण इसमें एक डिप्रेशन दिख रहा है। दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड कार्डियक नॉच। ओके, आवर लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर
approx it is 565 gram in weight, and right lung is approx 652 gram, approx 652 gram in weight. Next part, this lungs is divided into lobes, and further it is divided into lobules, then it is divided into segments. ओके, तो यहाँ पर जो ये ट्रैकिया हमारा डिवीजन करके प्राइमरी ब्रोंकस बनता है, दिस ट्रैकिया, ये ट्रैकिया हमारे लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स के हर लोब के अंदर ये डिवीजन करता है। जैसे पहले ये डिवीजन करके दो बन गया क्योंकि दो लोब मिले, इस लोब के अंदर लोब्यूल होगा, तो फिर ये और डिवीजन करेगा, और डिवीजन करके ये ऐसे ब्रांच बनाएगा, फिर और डिवीजन करके ये ऐसे ब्रांच बनाएगा, और डिवीजन करके ये ऐसे ब्रांच बनाएगा, और इस तरह से हमारे पास क्या होगा, लंग्स के अंदर कई सारे ब्रांचेस बनेंगे इसके फर्दर डिवीजन से। जो हमारे पास ब्रांचेस बनेगा, तो पहला हमारा प्राइमरी ब्रोंकस, इसमें जब डिवीजन होगा तो कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवीजन होगा तो टर्शियरी ब्रोंकस, फिर टर्मिनल ब्रोंकस, फिर लोअर ब्रोंकियोल, फिर सेगमेंटल ब्रोंकियोल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। इस तरह से इसमें कई सारे डिवीजन होंगे, और फाइनल ये सारे डिवीजन के बाद अंत में क्या होगा, तो सबके रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के एंड पर हमारे पास ऐसे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वियोलाई। यहाँ पर ये ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो हमारे लंग्स के अंदर लगातार इस डिवीजन से लगातार हमारे पास जो डिवीजन हो रहा है, तो इस डिवीजन से हमारे पास कुछ ट्री के जैसे ब्रांचिंग पैटर्न दिख रहे हैं, जैसे ट्री के ब्रांचेस निकलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड, दिस ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्री। ट्रैकिया डिवाइड्स into several branches inside the lungs, and it forms a tree-like branching pattern. This tree-like branching pattern is called respiratory tree. At the end of the respiratory tree or the branch, terminal branch, some sac-like structures are present. These sac-like structures are called alveoli or alveolar sac. Clear है? तो ये हो गया हमारे पास alveolar sac। अभी हम लोग एल्वियोलर सैक के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे कि हमारे पास एक आधी चीज़ें और भी डिस्कस कर लूँ कि हमारे पास पहले जो डिवीजन क्या था, इस डिवीजन में हमारे पास टर्म यूज हुआ है ब्रोंकस, और इसके बाद टर्म यूज होना शुरू हुआ है ब्रोंकियोल। देन अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल। ब्रोंकस तब तक टर्म यूज होता है जब तक ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है, और ब्रोंकियोल हमारा तब यूज होता है जब ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट ना हो, बल्कि इसके पास कोलैप्सिंग से बचने के लिए तो आपने देखा कि कैसे हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकस, लोअर ब्रोंकियोल, सेगमेंटल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ऐसे कई सारे ब्रोंकियोल का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ब्रोंकस और ब्रोंकियोल का क्या डिफरेंस है ये समझना है। तो ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल, ब्रोंकस हम तब तक कहेंगे when it contains C-shaped cartilaginous ring which protects it from collapsing, which protects it from collapsing, or it protects the bronchus from collapsing. And what is bronchial? Bronchial lacks, it is narrow tube
it lacks C-shaped ring. It lacks C-shaped ring, but it lacks C-shaped ring, but it contains a surfactant. But it contains a surfactant, and that surfactant is dipalmityl lecithin. It is dipalmityl lecithin. It also contains small amount of cholesterol and polyunsaturated fat. All these chemicals are collectively known as surfactant, and this surfactant protects the bronchiole from collapsing. Okay. Now I will discuss the structure of alveolar sac. In our lungs, approx 300 million alveoli are present. In each lung, approx 300 million alveoli are present. Let's see the structure. Let's see the structure of alveoli. So, in the lungs, this is the structure of our alveolar sac. Approx 300 million alveoli are present in each lungs. Overall, approx 700 alveoli are present. 720 million alveoli are present in both the lungs. This alveoli is made up of, this membrane of alveoli is made up of thin epithelium, which is known as squamous epithelium. This is made up of thin epithelium, which is called squamous epithelium. And this alveolar sac is lined by a network of blood capillaries. So around this alveolar sac, network of blood capillaries are present. These network of blood capillaries are present, which is filled with blood. Which is blood capillaries है तो किससे भरा होगा? This is filled with blood. This blood capillaries, कोई भी blood capillaries हमारे पास बनी होती है सिर्फ एंडोथेलियम की. तो these blood capillaries are made up of thinnest endothelium. ये बना है एंडोथेलियम का. अब अगर यहाँ पर ये देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहाँ से था, तो याद करो, दिस वाज आवर नोज, nasal chamber, trachea, primary bronchus, secondary bronchus inside the lungs, and finally this was alveoli. तो ये हमारे पास कनेक्टेड, ये डक्ट कहाँ से कनेक्टेड है? दिस डक्ट इज कनेक्टेड टू द एयर. तो इस alveoli के अंदर क्या filled है? This alveoli is filled with air and this blood capillary is filled with blood. इसमें क्या बंद है? तो this is filled with blood. So in between the air of alveoli and between the blood of blood capillary, a barrier is present, and this barrier is called respiratory membrane. This barrier is called respiratory membrane. This barrier is called the respiratory membrane, and the thickness of respiratory membrane varies. This respiratory membrane is made up of, बोलो किससे बना ये? This is made up of squamous epithelium and capillary endothelium. तो इन दोनों के ये जो सेल्स होंगे इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई करता है. तो स्क्वामस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम. तो यहाँ का बैरियर में सिर्फ इतने ही 3 लेयर्स प्रेजेंट है. थिनेस्ट एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम एंड स्क्वामस एपिथेलियम. तो ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हुआ. द थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वेरीज बिटवीन, ये हमारे पास 0.2 माइक्रोमीटर से
5 माइक्रोमीटर के बीच ये लाई करता है और इसी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से होकर के गैसियस एक्सचेंज होता है और गैसियस एक्सचेंज द प्रिंसिपल ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पर हमारा गैसियस एक्सचेंज होगा, यानी हमारे एल्विलाई से ऑक्सीजन गैस ब्लड में जाएगा और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एल्विलाई से होकर सिस्टम से होकर के बाहर निकलेगा। तो in the next lecture I will discuss the actual mechanism of breathing and the process of gaseous exchange which occurs in our respiratory system। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू।